Hello, good morning, students. Today we will continue with Scoliodon, BSc Part 2, Zoology, the anatomy portion of this animal. So we have seen digestive system of Scoliodon. Today we will see respiratory system. First of all, you should know that this animal, Scoliodon, is completely aquatic. Therefore, it completely depends upon oxygen dissolved in the sea water. So you will write that respiration is aquatic and it is depending upon the oxygen dissolved in the seawater. And respiration is entirely done by the vascular gills. Skin is not involved here in the respiration. Entirely the respiration function is being done by gills, and gills are highly vascular. Okay. So one may ask, please explain me more about the gills present in this animal. So you should know the anatomy of the gills. First of all, you may see here 5 pairs of gill pouches. These are gill pouches. One gill pouch, second gill pouch, third, fourth, and fifth. Pouch means pouch, jholi, thaila. So here you can see this. These are the gill pouches. 1, 2, 3, 4, and 5. These gill pouches are bearing gills. Gills कौन सा है? Gills हैं ये. I will put that in different color so that you understand it well. Gills are this. On both the anterior and posterior face of the septa. So you may notice here there are 2 types of gills. One is complete gill, one is incomplete gill. Complete gill means when septa is bearing lamellae on both of its face, anterior and posterior. In this animal, this is anterior side and this is posterior side. Okay, anterior, posterior. आगे स्नाउट की तरफ एंटीरियर फेस है, टेल की तरफ पोस्टीरियर साइड है. सो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वन, these fifth septa are example of hollow branch that we will discuss later. First, you should understand here that this animal is having 5 pairs of gill pouches. Gill pouches आपको की समझ गए होंगे. ये पाउच हो गया, 1 पाउच, 2 पाउच, 3 पाउच, 4 पाउच, 5 पाउच. And these gill pouches are arranged because these gill pouches are having gills in them. Okay. So these gill pouches are basically arranged in a series-like manner behind the hyoid arc. Hyoid arc आप लोगों को पढ़ाया है. Okay. In axial skeleton. Okay. Where? In the lateral walls of the pharynx. This is also the lateral wall. This one is also the lateral wall of the
pharynx both side, तो 5 पेयर हो गए। हर गिल पाउच जो है is composed of anterior posteriorly and communicates with the cavity of the pharynx. गिल पाउच वो compressed है antero posteriorly. This is anterior side, this is posterior side. So you are seeing here the gill pouches are like this. So you will say that it is compressed anterior posteriorly because it is wide here, but compressed here, this direction, anterior or posteriorly. So the gill pouch is compressed antero-posteriorly, and both sides it is communicating. Means one side it is communicating with the pharynx, the chamber where water takes the entry, and other side it is communicating with the exterior, means seawater from the outside. So each gill pouch is compressed antero-posteriorly, which communicates with the cavity of the pharynx. Okay, through a large branchial, and that aperture is internal aperture. So that aperture, the large branchial aperture, is basically internal aperture, and with the external medium with the exterior through a narrow external branchial aperture called gill slits. बाहर वाले जो एपर्चर हैं उसको हम गिल स्लिट्स भी कहते हैं। तो 5 गिल स्लिट हो गए, 5 गिल पाउच के, 1 to 5 एक्सटर्नल गिल स्लिट्स। जब यह एनिमल एक्सपायरेशन कर रहा है, यानी श्वास छोड़ रहा है, तो क्या करेगा, यह अपने फ्लैप्स को, यू में नोटिस हियर सेप्टा का जो है एक्सटेंशन है गिल के बाद भी, और वो फ्लैप में कन्वर्ट मॉडिफाइड है। ओके, दिस इज द opened mouth condition. When the mouth is opened, this side, and right hand side, the half right of this diagram is opened mouth condition. In this case, water is taking entry, but flaps are closed over the gill slits. So water will accumulate in the pharynx, pharynx will swell, and then it will open the flaps, means the gates of these gill pouches, and via with that water will go out from the pharynx to the external side via gill slit forcefully because of the muscular arrangement architecture present here. Okay, ये एक्टिवली वाटर को टेक इन कर रहा है और उसको बाहर की तरफ ले जा रहा है, ताकि इन गैसियस एक्सचेंज सरफेसेस पर फोर्सफुली विथ प्रेशर इन हाई वॉल्यूम वाटर का फ्लो बना रहे, और ये गिल्स हमेशा वाटर से बात होते रहे, ऑक्सीजनेटेड वाटर। ओके, तो इस तरह से यह अपने ऑक्सीजन के डिमांड को फुलफिल करता है। एक बात ध्यान रखने योग्य है, जो कि आपको यहाँ इस फिगर में नहीं दिख रहा होगा, इंटरनल एपर्चर इज वाइड एंड एक्सटर्नल एपर्चर इज नैरो। External aperture is gill slit. Okay, hope students you might be getting. Next, you should say understand that two adjacent gill pouches, दो बगल वाले गिल पाउच, सपोज ये गिल पाउच को देखो और ये गिल पाउच को देखो, मान लो, तो आप पाएंगे कि ये दोनों गिल पाउच कंप्लीटली सेपरेटेड हैं एक दूसरे से by a vertical fibromuscular partition, and that partition is called interbranchial septum.
ओके, ये क्रॉस सेक्शन है। इसको अगर आप 3 डायमेंशनली इमेजिन करें तो ये जो इंटरब्रैंकियल सिस्टम है ये एक पार्टीशन की तरह है। ये पाउच जो है वो खोली हो गया, ओके। उस खोली को सेपरेट किए हुए है वर्टिकल आपका पार्टीशन जो कि इंटरब्रैंकियल सेप्टम है, एंड ऑन दैट पार्टीशन गिल्स आर अटैच्ड। दिस लैमेली आर बेसिकली गिल्स। कोई कहेगा गिल्स क्या है, तो इपिथेलियल मेम्ब्रेन है, इपिथेलियल सेल टिश्यू है वो, या म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो दैट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ओवर दिस इंटरब्रैंकियल सेप्टम, जो रेड से मैंने बनाया है। रेड से आप यहां पर कलर्ड है, ठीक है। इस इंटरब्रैंकियल सेप्टम को गिल सेप्टम भी कहते हैं। इसका फेरेंजियल बॉर्डर जो है गिल सेप्टम का, ये फेरेंजियल बॉर्डर हो गया, ठीक। फेरेंजियल बॉर्डर जो है हर गिल सेप्टम का, ये सपोर्टेड है, आप इस फिगर में देखोगे सपोर्टेड है कार्टिलेज से। ये कार्टिलेज है, दिस इज a cartilaginous fish, so septum is supported by cartilage. ये इस एक गिल का सेक्शन है, इंटरब्रैंकियल सेप्टम है, एक होलो ब्रांच है, यानी एक कंप्लीट गिल है जिसमें इंटरब्रैंकियल सेप्टम है और आपका लैमेलीज है। ये क्या है लैमेलीज? इपिथेलियल टिश्यू है। और इस सरफेस पर ये हाईली फोल्डेड है, एंड ऑन दिस सरफेस water is continuously getting, this surface is continuously getting bathed by oxygenated water, so इसमें ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है कंटिन्यूअसली, ओके। तो ये कंटिन्यूअस कार्टिलेजिनस विसरल आर्क, तो ये कंटिन्यूअस विसरल आर्क और गिल आर्क से सपोर्टेड है। ये कौन? गिल्स, और इसके ब्रैंकियल रेज भी है। ये सब कार्टिलेजिनस टिश्यू है जो मैं ब्लू से कलर कर रहा हूं। यह सेप्टम जो है वो कवर्ड है बाय एन इपिथेलियम, बोथ साइड यू विल सी इपिथेलियम which contains blood vessels. ब्लड वेसल्स कौन से हैं इसमें आप देखेंगे, यहाँ एक कॉमन अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी है, दिस वन। जो भी मैंने रेड से बनाया है अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी है, यानी इससे ब्लड जा रहा है। और उसके बाद इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी, लेकिन इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी दो है, पोस्टीरियर साइड एक और एंटीरियर साइड एक। साथ ही साथ दो नर्व्स हैं, प्री ट्यूमेटिक नर्व एंड पोस्ट ट्यूमेटिक नर्व, जो भी ब्लू से लाइट ब्लू से कलर किया। तो ब्लड वेसल्स कितने हैं? 3 ब्लड वेसल्स हैं, 2 नर्व है, 5 हो गया। और एक उसके अंदर टिप पर टुवार्ड्स इट्स फेरेंजियल बॉर्डर
जो ब्रॉडर बॉर्ड ओपनिंग है उसके पास क्या है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर और गिल आर्क प्रेजेंट है। ये विसरल आर्क या गिल आर्क। इसका जो मस्कुलो इपिथेलियल मेम्ब्रेन है, सॉरी मस्कुलो नहीं, म्यूकस इपिथेलियल मेम्ब्रेन है, दिस वन जो रेड से बनाया हूं, कलर्ड है, यह न्यूमरस हॉरिजॉन्टल लीफ लाइक फोल्ड्स इससे निकले हुए हैं। न्यूमरस हॉरिजॉन्टल लीफ लाइक फोल्ड्स, इससे इसके रेस्पिरेटरी सरफेस की एरिया इंक्रीज हो गई, and that folds, those folds are called, horizontal leaf like folds are called gill lamellae. So anterior gill lamellae you will observe and posterior gill lamella. Lamella कई सारे lamellae मिले हुए हैं इसलिए lamella. Anterior gill lamella थोड़ा छोटा है, posterior gill lamella बड़ा है। इस फिगर में वो क्लियर नहीं है एंटीरियर पोस्टीरियर के बीच के लेंथ का डिफरेंस, बट इन दिस पिक्चर इट इज क्लियर। गिल लैमेला को गिल फिलामेंट्स भी आप कह सकते हैं। ओके, सो कुल मिलाकर के ये दिस गिल प्रॉपर बनता है। क्या क्या मिला हुआ है इसमें, म्यूकस एपिथेलियल मेम्ब्रेन दोनों साइड, एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड, कंप्लीट गिल प्रॉपर बना। कंप्लीट गिल प्रॉपर इज इक्वल टू anterior gill lamella plus interbranchial septum plus posterior gill lamella plus 2 efferent branchial artery, 1 afferent branchial artery, 2 traumatic nerves प्लस सपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या है इसमें, मसल्स हैं, दिस वन इज मसल प्लस स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है आपका विसरल आर्क, cartilaginous visceral arc and cartilaginous रेज, जिससे ये सेप्टा बना हुआ है। तो ये मिलकर के बन गया पूरा कंप्लीट गिल प्रॉपर या होलो ब्रैंक। ठीक है, होप आप लोग समझ रहे होंगे। ब्लड सप्लाई के साथ, और ये कंप्लीटली रिचली ब्लड सप्लाइड है, सप्लाइड विद ब्लड है। अब आप यहां देखेंगे कि हर सेप्टम के पास 2 सेट है गिल लैमेला का, एक एंटीरियर साइड है और एक पोस्टीरियर साइड है, और हर सेट जो है गिल लैमेला का दैट मेक्स a half gill and that one is called as demi branch, और इसका नाम एक और है हेमी ब्रैंच। ये सब याद कर लो आप लोग। अब आप यहां ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इसमें 5 पेयर ऑफ गिल पाउच तो हैं, लेकिन एक पेयर ऑफ गिल पाउच के पास क्या है, एक लैमेला क्या है, फर्स्ट वाला जो है वो है हेमी ब्रांच,
टोटल हो गया इसके पास 1 हेमी ब्रांच गिल्स ऑफ द स्केलेटन, गिल्स ऑफ द स्कोलियोडॉन, 1 हेमी ब्रांच गिल है, प्लस 4, 1 2 3 4, ये नॉन फंक्शनल है। लास्ट वाला जो है दिस वन इज नॉट फंक्शनल फॉर गैसियस एक्सचेंज। सो इसके पास एक गिल पाउच में यहाँ पर रेस्पिरेटरी सरफेस हो गए 1 2, फर्स्ट वाले में 1 2, सेकेंड वाले में भी हर गिल पाउच में 1 2 1 2 1 2, लास्ट वाले गिल पाउच में सिर्फ एक रेस्पिरेटरी सरफेस है। लेकिन फर्स्ट होलो ब्रांच अगर कहलाएगा तो ये वाला फर्स्ट होमो ब्रांच है। सेकेंड और फर्स्ट गिल पाउच के बीच में जो गिल लैमली शेयर कर रहा है दैट वन इज फर्स्ट होलो ब्रांच। एंड फर्स्ट वाला जो है उससे पहले वाला दैट वन इज हेमी ब्रांच, बेसिकली उसका नाम है आयोडियन हेमी ब्रांच। ये फर्स्ट होलो ब्रांच एंड हेमी ब्रांच। ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग? कोई भी सवाल हो तो आप लोग लाइव कमेंट्स में पूछ लेंगे। ओके, नेक्स्ट इसका एनाटॉमी में आपको जानने की जरूरत है कि इंटर ब्रैंकियल सेप्टा जो है वो एक्सटेंडेड है गिल लैमिला से आगे, और वो बनाते हैं एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करता है गिल्स को, साथ ही साथ एक्सटर्नल गिल स्लिट्स को भी प्रोटेक्ट करता है दिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। एंड ड्यूरिंग when mouth is open then flaps are closed, when mouths are closed the flaps are open, अपोजिट है। यहाँ पर माउथ ओपन है, पानी अंदर घुसा, फ्लैप बंद है ताकि पानी बाहर ना निकल जाए। पानी को क्या आवश्यकता है? फोर्सफुल्ली और तेजी के साथ, फोर्स के साथ इस गिल लैमले को बाथ कराते हुए उस वाटर को बाहर की तरफ निकाल दिया जाए। तो जब इसने पानी लिया फ्लैप्स आर क्लोज्ड, जब मुंह को बंद किया अब पानी नहीं लेगा, यहाँ माउथ इज क्लोज्ड, देन फ्लैप्स आर ओपन एंड ड्यू टू द मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ दिस chamber, pharyngeal chamber, the water will forcefully comes out. Okay, will come out. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो इस तरह के गिल्स को हम लैमेली फॉर्म कहते हैं। तो स्कोलियोडॉन में कैसा गिल है? लैमेली फॉर्म। लैमेली फॉर्म का मतलब लैमेली से आगे तक सेप्टा बढ़ा हुआ है। कैसे लिखोगे? इन स्कोलियोडॉन इंटरब्रैंकियल सेप्टा एक्सटेंड well beyond their gill lamella, ठीक, to form flaps which protects the gills as well as external gill slits, and such gills are called lamelliform। ठीक है। स्पाइरेकल का डिस्कशन हम लोग किए थे लास्ट क्लास में, चर्चा किए थे। स्पाइरेकल क्या है? स्कोलियोडॉन में वेस्टिजियल है, या कहें फर्स्ट ये गिल हो सकता है। इनके एंसेस्टर में स्पाइरेकल वाज माइट बी गिविंग द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेशन। इसका पोजीशन है हायोइड आर्क के सामने है, या कह लीजिए फर्स्ट इंटरनल गिल स्लिट के सामने है, एकदम सामने, फर्स्ट इंटरनल गिल स्लिट्स।
ग्रीन कलर से मैं बनाता हूँ। फर्स्ट इंटरनल गिल स्लिट ये है, यहाँ पर स्पाइरेकल है। हायोडार के सामने भी, दोनों साइड। And this pit, basically this is a pit. This pit is oval pit, and this oval pit is called as spiracle. इसके पास कोई गिल नहीं है, ना ही कोई लैमिला है, ना ही कोई एक्सटर्नल ओपनिंग है। सिर्फ पिट है, गड्ढा जैसा है, ब्लाइंड गड्ढा पिट है। सो ये रिकॉर्ड किया जाता है लाइक a vestigial hill pouch present in the Scoliodon. So this is the basic anatomy of respiratory system of Scoliodon. In the next class, we will see in short the mechanism of respiration, and then we will see circulatory system of Scoliodon. Thanks a lot.